So, very good morning, all the participants. Most of us are insolvency professionals only. The idea of this meeting is to apprise you of the artificial intelligence and how we can make use of this artificial intelligence. So, based on the interaction, we will be covering process wise because these days most of the insolvency professionals they are handling assignments for voluntary liquidation or individual insolvency. So our first focus will be on voluntary liquidation followed by individual insolvency, and depending upon the interest of the participants we can extend or we can have more such sessions, right? So let me share my screen with you. So I'll demonstrate it to you how this is being done. So I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Yes. Okay. So we'll just just right. So we'll just devote 5-10 minutes to it as introduction, and then we'll start with the demo. Now, how to use Claude? So we'll try to understand how we can make use of Claude, which is one of the forms of AIs, service providers. Like you have got various AI services. Most common is ChatGPT, which is freely available. Then Gemini is there, which is integrated with Google. There is Perplexity, Claude, and so many others. Initially, when I subscribed to this Claude, which was referred to me by somebody, he said, "Sir, Claude is very good, and you can use Claude while making your PPTs, while making your Excel charts, while making project financing reports, everything. Claude can fill up the form for you. They can make you presentations. If you give them, say, last 5-year financials, they can project it in future also. They can project it against the industry benchmarks also. So, a lot of your initial work is done through Claude. Maybe that you have to spend, say, 10,000 rupees initially per month. But I think that is too low a cost because even a PN you cannot get at 10,000 rupees per month. And if you don't want to spend that much also, I am always with you. You can just send me a WhatsApp message that this is the thing I want. And depending upon the time availability, which I am generally available, so I can do that work for you. ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं तो फ्री हूं. कोई लोग बोलते हैं भाई हम बहुत बिजी हैं, मैं तो ये कहता हूं मैं हमेशा ही खाली हूं एंड आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन. ये क्लाउड क्या करता है? बेसिकली व्हाट इट डज, आप देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए ड्राफ्टिंग असिस्टेंस. You have read IBC. In IBC, you have got certain forms, but there are certain applications for which no drafts are there. PUFE application file करना है, Constitution of COC के लिए application file करना है, 19(2) का application file करना है. There are so many things, है ना? Now the problem comes where to find the language. At least if you can have a draft, right? So it serves you as a drafting assistance. कोई बोर्ड रेजोल्यूशन है भाई, आप ये बात समझिए कि इफ ए क्लाइंट हायर्स यू, ही हायर्स यू एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर. ठीक है, सपोज a company director is in touch with you and he says that okay, you please handle this voluntary liquidation assignment. Then as far as I understand the industry, the normal businessman, he will expect you to do everything. He will expect you to draft the declaration of insolvency also. बुक में तो लिखा है कि डायरेक्टर करेंगे, बट डायरेक्टर तो सिर्फ साइन करेंगे.
बनाना आपको ही है. So, where to find all these things? So, Claude I is handy, but you have to feed Claude information also. Like if you feed the latest copy of the IBC code, you should be able to question that also, because sometimes they commit mistakes also. So the first thing is that we should have our library handy. अब जैसा जितनी भी बुक्स आती है मैं हमेशा बुक खरीदता हूँ. अब ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल पहले अगर एग्जाम पास किया था तो यू आर हैविंग दैट बुक. नहीं, आपको जब जब भी चेंज आए आपको बुक तो खरीदनी. अगर बुक नहीं खरीद सकते तो ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी देखो. आईबीसी में मेन इशू क्या है कि हमारा जो अमेंडमेंट भी होता है, अमेंडमेंट अलग पड़ा हुआ है, बेसिक कोड अलग पड़ा हुआ है, रेगुलेशंस अलग पड़े हुए हैं, रूल्स अलग पड़े हुए हैं, है ना. तो लेकिन फिर भी इफ यू हैव गॉट अ बुक, इट इज ऑलवेज बेटर आइदर ए सॉफ्ट कॉपी और ए हार्ड कॉपी. तो वन ऑफ द असिस्टेंस विच यू कैन गेट फ्रॉम क्लॉड इज एज ए ड्राफ्टिंग असिस्टेंस. ठीक है. If you want to compare options, structure, they can structure a checklist also for you. And naturally, it is a productivity multiplier. Like IBBI recently issued some circulars. So you feed all the circulars. So it will provide a summary. Disciplinary cases, you download 10-15 cases, you attach it in cloud and it will give you a summary, right? What are the points on which IBBI grilled the insolvency professional. So it acts as a productivity multiplier also. But definitely it is not a substitute for your judgment. So you have to exercise your own judgment. And it is not a source of the bare law. So regulation numbers, dates and form names must be verified against the context. So that is why you should have either a hard copy or a soft copy. And it is not a filing engine. So every output is a draft that passes your review before it goes anywhere. But of course, if you give them the form, if you give them the information, so it can help you in filling up the form also, which I have utilized for some other purposes. Like I do some funding business. So in funding applications, so it will fill up the application for you in case you give them the basic information, right? So what we are going to study here, voluntary liquidation document set, declaration of solvency, board, special resolution, liquidator consent, form A. अब वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि कॉर्पोरेट पर्सन विल इश्यू यू एन अपॉइंटमेंट लेटर, बट द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट वो कौन देगा? वो डोंट एक्सपेक्ट द डायरेक्टर टू गिव यू, आपको ही देना है वो. फॉर्मल सेटअप में हम लोग क्या समझते हैं, भाई देखो हम लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है तो we will do our work only or whatever is written in the code, but things don't move like that. ठीक है. So you have to give them everything, and this Claude can help you. I will demonstrate it to you. I'll share with you the formats also, and you, after going through those formats, you can point out the deficiencies if any. Process intelligence is there, stage-wise checklist and timelines. Reports and the NCLT filing, preliminary report, final report, dissolution applicants, right? And then trading and productivity. ठीक. So while taking assistance in drafting, first thing is prompt. So you have to give a very clear and structured instructions with the facts. You apprise him of the facts of your case and you give them instruction, whether it is a limited company, private limited company, LLP, what is the format. It returns a strong skeleton in seconds. So draft will be delivered to him within seconds. Then you verify, you check every regulation number, date and form against the bare text. And IP reviews, edits and signs, and liability stays with the IP because Claude will not be responsible. So it will always say with a disclaimer that it is only for educational purposes, right? But you can enable memory also in cloud. So it will tend to remember what you did in the past. You can create projects also in the cloud. Say one project for volatile liquidation, another for CIRP, another for liquidation. ठीक है.
Okay. So now I will show you some instructions. So these are some of the commands. Okay. I hope this is visible on your screen now. So these commands Yes, sir. also Claude will give you. So what you have to do? You have to just copy and paste, right? Like suppose you want to draft this voluntary declaration of solvency. आपको क्या करना है? ये वाला जो है ना, इस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है क्लॉड में. अब मैं एक बार क्लॉड भी खोल के दिखा देता हूं. ठीक है. और कैसे कॉपी पेस्ट करेगा, क्या करेगा, वो भी मैं आपको बता दूं. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू सो दैट माय कंप्यूटर इज विजिबल टू यू. ठीक है. अभी मेरी स्क्रीन इज विजिबल आई थिंक. ये वाला मैं शेयर करता हूं. जस्ट अ मिनट. अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको या नहीं? Yes, sir. ओके. अब मैंने क्या किया यहां पर, मैं इसको कह दूंगा क्लॉड. ठीक है. ये गूगल के साथ लिंक्ड है, जीमेल के साथ लिंक्ड है, क्योंकि एक टाइम पर आप एक ही जना यूज कर पाएगा इसको. ऐसा नहीं कि 36 लोग यूज कर पाएंगे. समझ रहे हो आप? आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप जीमेल खोलोगे, आप वो क्लॉड के साथ आपको पहचानता है कि भाई आप कौन हो. ठीक है. वो आपकी हिस्ट्री भी जानता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू आर डूइंग. तो क्लॉड के साथ मैंने लॉगिन कर लिया. ये नजर आ रही मेरी स्क्रीन? हाँ जी. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्लॉड ये डॉट ए लॉग इन. नहीं, नीचे जो हैप्पी संडे लिखा हुआ सी आर के गुप्ता नजर आ रहा? नहीं, नहीं. नहीं नजर आ रहा. कोई बात नहीं, एक मिनट. वो नहीं आ रही सर. अच्छा, मैं अभी ये सेमिनार तुझे अटेंड करना चाहिए. ये नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है? यूज ऑफ एआई नहीं, नहीं नहीं. अभी आ रही. अभी आ रहा है ना? अभी हाँ. आ रहा है. लॉग इन ठीक करके है. दिखा रहा है ऑन स्क्रीन कैसे कैसे कर रहा है. तो ये क्या कह रहा है? हैप्पी संडे सी आर के गुप्ता, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे. अब यहाँ पर आपको ये मुकेश वर्मा जी म्यूट कर लीजिए अपने को. हाँ जी. ठीक है. तो अब नजर आ रहा है ना आपको? हाँ जी. हाँ. अब क्या करना है, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन बताई थी, ये इंस्ट्रक्शन है मेरी. अब मैंने क्या किया, आई वॉन्ट टू ड्राफ्ट ए डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. अब मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको ये कहूंगा भैया देखो ऐसा, ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ये प्रॉम्प्ट भी वो बना देगा. ठीक है. अब मैंने क्या किया, यहां पर कॉपी करके कंट्रोल सी और यहां कंट्रोल वी कर दिया. सर स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है. एक मिनट, एक अब मूव कर, अब मूव होगा. अब देखिए, हाँ अब आया हाँ सर. जी. अब आ गया ना? आया. हाँ. हाँ मैं जी. कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, एक्चुअली मल्टीपल स्क्रीन शो नहीं हो सकती. तो ये मैंने क्या किया, इसको एंटर कर दिया. अब इसको कह दिया मैंने भैया ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आप दे. ठीक है. अब आपको बताना है कि भाई कंपनी के पास डेट है या नहीं है. ठीक है. सो के बी कुमार जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ. सो अभी ये क्या कर रहा है, देखो ये थोड़ा टाइम लगाता है. ठीक है, समझने में टाइम लगाएगा ना. तो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. अब क्या सिचुएशन हो सकती है, आइदर योर कंपनी हैज डेट्स और इट हैज नो डेट्स. अब हमने क्या बोल दिया कि भाई द कंपनी हैज नो डेट्स एंड कैन पे इट्स ड्यूज इन फुल इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स वेरीफाइड डिक्लेरेशन दैट द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड फलाना ढिमकाना. ठीक है. तो ये हमने इसको बता दिया पूरा. अब ये फॉर्मेट करेगा. ये नजर आ रहा होगा आपको, आर्किटेक्टिंग स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन नजर आ रहा है ना? हाँ जी. हाँ जी. हाँ. Yes, sir. हाँ. गुप्ता जी एक डाउट है. यस प्लीज. अभी देखिए ना, आईबीसी 2016 करके दिए थे ना, मगर अभी अमेंडमेंट आया हुआ है और रेगुलेशन में भी अमेंडमेंट है. ये सब अभी ले लेता वो- हूँ. ऐसे. ही विल कंसिडर एवरीथिंग. ओके. अभी पर उसके लिए आपको बुक तो रखनी है ना अपने पास. अगर ये कोई गलती करेगा, आप पकड़ने लायक तो होने चाहिए. हाँ जी. हाँ. ये और जब तक ये कुछ काम करता है, आप अपना कुछ काम करते रहिए. ऐसा भी कर सकते हैं.
ये तो देखो ऐसा है, जैसे अब आपको राजमा चावल बनाने हैं, तो राजमा चावल में टाइम तो लगेगा ना। इसीलिए वो जो अपना यूट्यूब में भी दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ प्री कुक्ड रखते हैं ना, कि भैया ये हमने पहले से ही किया हुआ, अदरवाइज तो 2 घंटा का वीडियो तो होगा नहीं। जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, एंड देन आई विल शो यू द फाइनल आउटपुट्स। बेसिकली इसी तरह से होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर केस। आपका केस अलग हो सकता है, आपकी कंपनी कोई कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, नाम अलग अलग होंगे, है ना, सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी। ये तो आपको एनोनिमाइज करके ड्राफ्ट दे देगा, और आपको और वर्ड में दे देगा ये, ठीक है। वर्ड में उसको आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, कुछ उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दे देगा, विच जो आप फाइनल जब करोगे तो देन यू कैन डिलीट दोस इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, ठीक है। Sir, one small query. यस प्लीज। I mean, in the meantime, it works on the draft. Sir, यस यस have you parallelly, like, if in your experience, have you parallelly given the same prompt on Gemini or some other AI? I यस mean, यस, you आई हैव use. यूज्ड ऑल, आई हैव यूज्ड एआई, Okay. आई So, हैव sir, यूज्ड what चैट is, जीपीटी। I mean, if you can throw some light on, like, why Claude is preferred and, Claude is preferable because you can work in Excel, you can work on PPT, you can work on anything. It can pre-fill your forms for you. There are so many things, but there are others also. Perplexity भी है, बहुत सारे हैं, but I find it okay. useful. अभी Okay. क्या तो है, क्या जो पेड वर्जन इनिशियल इस्तेमाल कर रहे हो या फ्री वर्जन? इनिशियली जो है इसका सब्सक्रिप्शन है $20 US डॉलर्स पर मंथ का, ठीक है। बट अगर आप $20 वाला सब्सक्रिप्शन भी लेते हो, तो क्या होता है कि थोड़ी देर काम करेगा, फिर वो बोलेगा भैया 1-2 घंटे बाद आना, समझ रहे हो। फिर हमने क्या किया, $100 का इसका सब्सक्रिप्शन लिया। तो $100 का जब सब्सक्रिप्शन लिया, अब ये कुछ नहीं कहता हमारे को, 5-5 6-6 घंटे काम करता रहता है। एंड सर पेजेस जैसे आपने बोला था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू कैन लिमिटेशन अपलोड? ऐसा है, या तो 100 इमेजेस या नॉर्मली 20 फाइल्स तक ले लेता है वो एट ए टाइम। ओके ओके अभी तो सेम मैंने क्या काइंड किया है, ऑफ. हाँ अभी मैंने तो सॉरी. सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया ना, इसको इंस्ट्रक्शन दिया, कोई फाइल अटैच नहीं किया। जी जी बट जी. यू कैन नॉर्मली अटैच अप टू 20 फाइल्स, वो काफी सारी फाइल्स ले लेता है। ओके हाँ, ओके हाँ, तो हैवी फाइल्स के साथ भी काम कर लेता है, कोई इशू नहीं है। ओके. अब आपको किसी ने भेजा, सपोज भाई आप वॉलेंटरी लिक्विडेशन हैंडल कर रहे हो, है ना, सम ऑफ योर फ्रेंड है ऑलरेडी हैंडल्ड। अब वो भी बोलता है यार, मैं पुराना नाम वाम क्यों हटाऊं, ये मेरा दोस्त है, इसको ऐसे यार करके भेज देता हूं। सो यू कैन इवन एनोनिमाइज इट, ठीक है, कि ओके. भैया ये ड्राफ्ट हमारे पास है, इसको एनोनिमाइज कर दो, मेक इट जनरल। उत्तर एक 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 सेकंड में थोड़ा हाँ, सा हाँ डिस्कस जी, किया हाँ हूँ जी, बीच में। बिल्कुल। हाउ वी हैव स्टार्ट के कोई इसमें ऐप या कोई सॉफ्टवेयर कोई लिंक इसको ड्राफ्ट को पुटअप करने के लिए थोड़ा सा एक बार प्रोसेस रिपीट कर देंगे, इजी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वो प्रॉम्प्ट सारे भेज दूंगा ना आपको। आई विल सेंड यू द प्रॉम्प्ट itself इन द ग्रुप। ये जितने भी ओके। प्रॉम्प्ट हैं, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आई विल सेंड दिस वीडियो हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड आल्सो। रिकॉर्डिंग राइट भी मिलेगा ना गुप्ता जी? रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यहाँ राइट तो सब कुछ राइट। मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दे दिया इसने, देखो डिक्लेरेशन। अब आप इसको डाउनलोड करके जहां पर भी आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे डेस्कटॉप पे मैंने क्या किया हुआ है, एक प्रैक्टिस मैनुअल बना रखा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत सारे मैंने ड्राफ्ट बना रखे हैं। तो एक फोल्डर बना दिया मैंने आज के नाम से, मान लीजिए डेमो, ठीक है। तो डेमो में मैं ये सेव कर सकता हूं, ये डेमो में चला गया, ठीक है। अब देखो ये बन गया आपके पास, ये नजर आ रहा है आपको वैसे स्क्रीन पर, नहीं तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ, हाँ जी, यस। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। हाँ, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, ताकि आप इसको पढ़ भी सकें और इसमें कुछ कमियां भी निकाल सकें। ये हो गया आपका, पीसी,
ये प्रैक्टिस मैनुअल आ गया। प्रैक्टिस मैनुअल में मैंने क्या किया, इसमें डेमो के नाम से एक फोल्डर बना दिया। ये डेमो, और ये इसमें डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है जी, इनेबल एडिटिंग। और ये मैं अब शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन पर कि इसने क्या बनाया है। మీరంతా కలిసి ఒకటై వాటి అబ్బాయి పెట్టిందని అనుకుంటుందో ఏమో ये అట. Mr. Rao, please mute yourself. అనుకుంటుండో ఏమో అట. Nagarjuna ji, please mute yourself. So I hope now this declaration of solvency is visible. Is it visible? है ना? जाना Is it visible? Yes, sir. हाँ तो जी ये अब ये बना दिया इसने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। इस तरह से ये बहुत सारी चीजें बना देगा। अब आप अपनी कंपनी का नाम भरो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भरो और ये कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एफिडेविट भी दे दिया इसने। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कंप्लीट सेट। इस तरह से मैंने क्या किया, कंप्लीट सेट बनाया इसका। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड ए कंप्लीट सेट ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर दैट फाइल विद यू। उसमें क्या है, इट हैज गॉट मोर देन 30 फाइल्स। डेस्कटॉप, प्रैक्टिस मैनुअल, वॉलंटरी लिक्विडेशन, और ये आपका आज वाला जो है 28। ठीक है, 28 पे किया। हाँ, तो 28 में मास्टर कंपेंडियम। तो व्हाट आई हैव क्रिएटेड इज आई हैव क्रिएटेड ए मास्टर कंपेंडियम। ठीक है, जस्ट सो आई विल शो यू दैट मास्टर कंपेंडियम एंड आई विल शेयर दिस मास्टर कंपेंडियम विद यू। ठीक है, ये देख, आई होप इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन नाउ। Yes, sir, it is. है ना? हाँ, तो ये जो मास्टर कंपेंडियम है, ये मास्टर इंडेक्स आ गया। अच्छा, ये इसने मास्टर इंडेक्स बना दिया कि भाई ये इसके अंदर फाइल्स है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो भी हमने क्रिएट किया, आपको दिखाया, फॉर्म ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, ऐसे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, सारी चीजें, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेटर, ये सब इसी से बनाया हुआ। क्योंकि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी आप ही को बनाना पड़ेगा। आप सर, सोचो लगता है- सीडी बना करके देगा, सीडी विल नॉट गिव इट टू यू, यू हैव टू डू इट। सर लगता है एक दिन AI कोई IP बना देगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। देखिए ऐसा ना, बट हेल्प तो है ना। अब आप देखिए, एक डेट के बाद, एक स्टेज के बाद क्या होता है, आपका स्टाफ ज्यादा काम करता है, आप कम करते हो, है ना? आप तो इंस्ट्रक्शंस देते हो। तो इट इज जस्ट लाइक योर गुड असिस्टेंस। बेसिकली असिस्टेंट वाला ही काम कर रहा है ना। अब रिटर्न कॉन्सेंट हो गई, इस तरह से क्रेडिटर्स अप्रूवल ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है, उसके बाद में शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ 2/3 वैल्यू, और इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इंटीमेशन टू द बोर्ड। अब आईबीसी में तो लिख दिया भाई, यू इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार। अब कोई लेटर फॉर्म में तो दोगे ना, तो इससे आपको हेल्प मिल गई, है ना? जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करो, इंटीमेशन बाय द लिक्विडेटर ऑफिस अपॉइंटमेंट, लिक्विडेटर्स रिमनरेशन किस तरह से कैलकुलेट होगी, लिक्विडेटर्स प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। अब ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बन के आ गई आपकी, एप्लीकेशन टू अवॉइड PUFE ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये सब फॉर्मेट यहीं से डिजाइन है। एप्लीकेशन टू सस्पेंड द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या बुक्स आपको रखनी है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द, अब आपने बैंक को लेटर देना है फॉर ओपनिंग लिक्विडेशन अकाउंट, है ना? क्लेम्स पैक, सबमिशन, वेरिफिकेशन एंड डिसीजन। उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स राइट। कुछ कुछ हम इसको बोलते हैं, जैसे मैंने इसको बोला। अब हमारा सेक्शन 52 या जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, इट सेज दैट द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब मैंने इसको बोला भाई ये भी लेटर बनाओ कि सिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे लेटर देगा। अब हो सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर भी कोई डायरेक्टर का यारा प्यारा ही हो। डायरेक्टर बोलेगा यार
सिक्योर्ड क्रेडिटर का लेटर आप दे देना जरा। आप ये तो नहीं बोल सकते ना भाई वो अपने आप बनाएगा, नहीं, आप ही को बनाना है। जो आपने ले लिया 50,000 रुपए, लाख रुपए, बस वो पूरा आप ही के जिम्मे हो गया, सब कुछ काम आप ही को करना है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो लेटर देगा वो भी सब इसमें दे दिया। कुछ कुछ आपको बताना पड़ेगा, है ना। कुछ तो वो लेटर बना देगा, बट वो उतना ही काम करेगा मजदूर की तरह जितना आप उसको बताओगे। वो आपके ऊपर है, आप कितना निचोड़ सकते हो उसको। उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड चार्ज। अब आपने आरओसी से या सरसई से चार्ज लेना है, उसके लिए क्या रिक्वेस्ट है, ये सब भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये सब मैंने ही बोला इसको कि भाई ये बनाओ, अपने आप नहीं बनाना था ये, पर जब उसको बोलोगे ना तो ये और बनाएगा नेचुरली। ठीक है, वो आपके ऊपर है। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हो गई, असिस्टेंस बाय ए कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है, एसेट सेल, रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी। अब मैंने इसको बोला देखो भाई कॉर्पोरेट पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है एसेट सेल के लिए या रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी, तो ये रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी भी हमें बना के दो। तो इसने बनाया रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी। ई ऑक्शन प्रोसेस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, मैंने इसको बोला भाई ये आपने ई ऑक्शन करना है, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बना के दो, तो इसने बना दिया। और आपको तो ना 10,000 रुपए खर्च करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। आप तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजो, मैं भेज दूंगा आपको, है क्या। ये नहीं, ये तो पहले ही भेज दूंगा। इसके अलावा कोई नया चाहते हो आप, या कोई चेंज आ गया तो, ठीक है। रियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, स्टेटस रिपोर्ट, उसके बाद रेजोल्यूशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। भाई आपका पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद में रेजोल्यूशन भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो वो रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट। कई चीजें तो मैंने इसको बोली भाई बनाओ, ये वाली चीज भी बनाओ, ये वाली और बनाओ, ये वाली और बनाओ, इस तरह से। लिक्विडेटर्स फाइनल रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट ऑन रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एप्लीकेशन, प्री फाइलिंग कंसिस्टेंसी चेकलिस्ट। ये मैंने भी इसको बोला था कि भाई चेकलिस्ट बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू फाइल द डिसोल्यूशन एप्लीकेशन ना, इट गेट्स रिजेक्टेड फ्रॉम एमसीए। तो एमसीए से रिजेक्ट हो जाती है नॉर्मली। तो वो कहता है भाई इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने अलग अलग जगह डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में कुछ लिखा हुआ है, अकाउंट्स में कुछ लिखा हुआ है, फाइनल रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ है, इस वजह से आती है। तो एक इसने चेकलिस्ट बना के दे दी कि भैया ये चीज चेक कर लो, ठीक है ना। गुप्ता जी, ये ये सभी फॉर्मेट्स एक ही फॉर्म में मिला है या अलग अलग फॉर्म दिए थे? हमने उसको बोलते गए कि भाई ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, तो बना दिया उसने। अच्छा, हाँ, एक ही फॉर्म में नहीं होता है। एक लॉट में तो नहीं होगा ना। ओके। सर वो भाई एक्चुअली एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं तो फिर दोबारा वो थ्रेड टाइप बनती जाती है। अगर आप उसके बाद दूसरा प्रॉम्प्ट देंगे ना तो इट कंटिन्यूज इन द सेम हाँ, वो थ्रेड। इंडेक्स भी बना देगा, वो सबको जोड़ भी देगा। ये मैंने अलग अच्छा, अलग फाइल बनाई, फिर मैंने इसको कहा सबको जोड़ दो एक ही फाइल में, तो इसने ओके। जोड़ दिया पूरा प्रोसेस। अब व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक ए कंपेंडियम फॉर ईच प्रोसेस। भाई आईबीसी क्या है, प्रोसेस वाइज ही तो है। कोई सीआईआरपी है, कोई वॉलंटरी लिक्विडेशन है, कुछ लिक्विडेशन है, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है, बैंक्रप्सी है, यही सब तो है। अगर प्रोसेस वाइज आपको कंपेंडियम तैयार हो जाए तो काम बन गया आपका। कुछ तो मिला ना आपको, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया ना। ये टर्मिनेशन हो गया वॉलंटरी लिक्विडेशन का। उसके बाद ये फॉर्म VL1 टू VL4, इसका फाइलिंग ट्रैकर और कंप्लायंस नोट बना दिया। तो इस तरह से ये वाला पूरा मैंने वॉलंटरी लिक्विडेशन का किया हुआ है। अब आपको बताना है कि भाई वॉलंटरी लिक्विडेशन में कुछ और आपको चाहिए इसके अलावा, तो आई विल शेयर इट, ठीक है। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, अपना जो आईपी सेंचुरियन ग्रुप है, तो उसमें आप यू गो थ्रू दिस ड्राफ्ट्स। अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए। कई बार ये रेगुलेशन नंबर भी गलत लिख देता है, तो हम क्या करते हैं, बुक खोल के देखते हैं साथ साथ में, भाई रेगुलेशन नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा। थोड़ा बहुत तो चेक करना पड़ेगा ना आपको, बट ये कि इट हेल्प्स यू अ लॉट। कुछ उधर की खबर है, अमरावती क्या चल रहा ठीक है जी। है? नहीं है कोई बताने वाला, बात होती है, कोई है नहीं ना। अरविंद सक्सेना जी म्यूट कर लीजिए अपने को। कौन चीन के वो अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी, तो ये हो गया।
अब मैं इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी पे चलता हूं, या इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन इन माइंड ऑन वॉलंटरी लिक्विडेशन तो बताइए। मैंने क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड दिस 74 पेज कंपेंडियम, इसमें पूरे सारे फॉर्मेट्स हैं जो भी आपको चाहिए, और सिर्फ सर आपके लिए ये नहीं, ये सिक्योर्ड फ्री क्रेडिट है या इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? है। ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसका पेड है ये या फ्री ये है? देखो, मैंने तो पेड लिया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप? मतलब ये है कि आप लेना चाहो ले सकते हो। आप कहो यार कुछ काम दाम तो है नहीं, मैं 10,000 रुपये और खर्च दूं, है तो भैया मेरे को व्हाट्सएप भेज दो, मैं भेज दूंगा आपको, मैं तो खाली रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्पस क्या है कि एआई को हमारे को यूज करना पड़ेगा कभी ना कभी, वो जरूरी है कि नहीं? सर ये डिक्लेरेशन वॉलंटरी लिक्विडेशन करने में आरपी का डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है क्या इसमें? आरपी का तो है ही ना। कंसेप्ट। हाँ हाँ, कंसेप्ट। आरपी का व्हेन ही विल एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ना। हाँ। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अदरवाइज आई विल चेक इट, आई कैन चेक इट हियर ऑल्सो, मैं यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट आई विल डू इज, और इसके बाद में देन विल मूव टू इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। ये हो गया वॉलंटरी लिक्विडेशन, ये मास्टर इंडेक्स, एक मास्टर इंडेक्स है और एक मास्टर कंपेंडियम है। एक इंडेक्स बना दिया और एक हमने कंपेंडियम बना दिया। एक मिनट। सर अगर हम टेम्पलेट के साथ वी गिव द एंटायर इंफॉर्मेशन आल्सो, विल इट क्रिएट द एंटायर डॉक्यूमेंट कि बिल्कुल हमने बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल कर देगा, और क्या, वो तो कर ही देगा। बट क्या होता है नॉर्मली, आप क्या करते हो, देखो आपकी इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल, समझ रहे हो आप? तो आप बेसिकली तो जब आपको फॉर्मेट मिल गया, उसमें तो नाम नाम भी भरना है, वो आप खुद भी भर सकते हो। बल्कि खुद भरने से फायदा क्या होगा कि आप उसको चेक भी कर लोगे, है कि नहीं? आप कहोगे तो वो भी भर देगा, वो कोई इशू नहीं है, वो तो भर ही देगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो आई हैव शेयर्ड दिस इन व्हाट्सएप। So, sir, preferable is that we take the drafts from it and fill it ourselves. हाँ वो बेस्ट, वो प्रेफरेबल मोड है। हाँ, क्योंकि क्या है, आपको एक ही बार तो ड्राफ्ट बनाने हैं ना, उसके बाद तो सेव एज करना है, वो तो स्टाफ को भी बोलोगे तो भर देगा भाई, कंपनी का Correct. नाम भरना है, सीन नंबर भरना है, डायरेक्टर का Correct. नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन नंबर क्या है ना। Correct, वो sir. तो बल्कि वो ज्यादा अच्छा है अगर आप खुद भरो तो, कल को दूसरी और सर कंपनी आ पढ़ेंगे गई, भी ना, एक बार पढ़ेंगे भी तो समझ एक में बार भी पढ़ आएगा भी क्या लोगे। लिखा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इस बहाने पढ़ भी लोगे आप। तो ये वाला तो सारा मैंने आपको शेयर कर दिया। अब हम चलते हैं इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी पर। है। उससे Thank you, पहले sir. आपका पॉइंट था केबी कुमार जी, लेट अस चेक दैट पॉइंट कि भाई वो इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हो ना आप? अभी देखते हैं। और पर्टिकुलर आपको कोई फॉर्मेट चाहिए, आप नहीं भी सब्सक्राइब करना चाहते, आप मुझे बोलो, मैं दे दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। ये मास्टर कंपनी, लेकिन क्या होता है कि खाली इसी के लिए नहीं, आईबीसी के लिए हम लोग इसको दूसरे पर्पज से भी यूज करते हैं, समझ रहे हो? जैसे क्या होता है, जैसे मैं कुछ फंडिंग वगैरह का काम करता हूं, तो फंडिंग वगैरह के काम में हम क्लाइंट को इंटरव्यूअर डेक बना करके देते हैं। वो इंटरव्यूअर डेक ये बना देता है क्लॉड, और वो बेंचमार्किंग भी कर देता है कि भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है। तो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, इज इट विजिबल केबी कुमार जी? हाँ जी, Yes, दिखाई sir. दे रहा है। अब यस ये सर। अब ये जो आप यू आर आस्किंग फॉर द लिक्विडेटर्स रिटर्न कॉन्सेंट है ना, तो इसमें ये 5 नंबर पे है कि लिक्विडेटर्स रिटर्न कॉन्सेंट, लेट मी सी। स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आ गया, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेटर आ गया। ठीक है, तो ये तो नेचुरली आपको
कंपनी देगी, ठीक है ना, कंपनी देगी इसको। अब आप कह रहे हो कि उसका एफिडेविट है या नहीं, वो और चेक कर लेते। वो मैंने बना रखा था वैसे, ये सारी पावर्स वगैरह दे दी। रिटर्न कॉन्सेंट ये वाला है ना, तो केपी कुमार जी दिस इज द रिटर्न कॉन्सेंट। केपी कुमार जी आर यू देयर? तो दिस इज द रिटर्न कॉन्सेंट, ये सारा लिख दिया इसने, ये मेरा ये रूल है इस तरह से। तो दिस फॉर्म इज देयर। हाँ हाँ, दिस इज द रिटर्न कंसेंट। यस दिस इज देयर। यस सर, यस। हाँ, तो मैंने पूरा शेयर कर दिया आपसे, हाँ, यस। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस वॉलंटरी लिक्विडेशन और एनी इश्यूज व्हिच यू आर फेसिंग बिफोर वी मूव टू इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी? Sir, this consent form for liquidation, it is Form A, sir, double A. Yes. But there is no form prescribed in voluntary liquidation. No, that is there definitely. But the corporate person would like, there are like in individual insolvency also, for public notice there is no prescribed form. In bankruptcy it is there. But then in those cases you have to devise your own form. वो तो you have to see the intent of the law ना, basically. Form B is there ना sir, individual insolvency के लिए? अभी बना दिया होगा, पहले नहीं था, ये 2026 में आया है फॉर्म। अर्लियर देयर वाज नो फॉर्म, इसीलिए देयर कुड बी वेरी सच इश्यूज इस तरह से। चलिए, so any question on this voluntary liquidation? No sir, you can proceed. Before we move to individual insolvency? Yeah, any experience of voluntary liquidation? Any issues which you might have faced? किसी को भी कोई भी इशू आया हो voluntary liquidation में? तो अब आप, पहला तो मेरा कहना यह है कि आप अपना ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर लीजिए। यू बिकम ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। आप भूल जाओ आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो क्या हो, आप क्लाइंट तो आप ही को जानता है। यू आर दी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग एंड यू हैव टू प्रोवाइड हिम, है ना। तो सच थिंग्स हेल्प यू अ लॉट। आप अपना माइंड तो कर ही रहे हो, माइंड तो नेचुरली है ही, है ना। बुक भी है आपके पास, बुक से भी आप काउंटर चेक कर सकते हो, आप भी इसको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। और मेमोरी में भी आप इसमें, इफ यू इनेबल मेमोरी इन क्लाउड, सो इट विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ऑल्दो इट सेज आई विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग, वो क्लाउड बोलता है कि भाई एवरी टाइम यू हैव टू गिव मी इंस्ट्रक्शंस। तो यू कैन एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स भी बना सकते हो इसके अंदर, है ना। तो इस तरह से HTML फाइल्स भी, क्विज भी जनरेट कर सकता है, इट कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो आई एम यूजिंग इट एक्सटेंसिवली। अब दूसरा करते हैं इसमें, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, ठीक है। शिवा प्रसाद जी बोल रहे थे कुछ इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में भी होना चाहिए, तो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस मैनुअल आ गया, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। जस्ट ये PG to CD है ना है, गुप्ता जी? हाँ PG to CD है ना? हाँ, वही 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 वही। ओके, थैंक यू। तो मैं ये शेयर करता हूं आपसे। अभी आपको मेरा फोल्डर नजर आ रहा होगा, है ना, ये फोल्डर नजर आ रहा है आपको, दिस इज द फोल्डर, है ना, इन विच आई हैव क्रिएटेड वेरियस फाइल्स, ठीक है। तो अब इसमें इफ वी आइसोलेट द प्रोसेस, देखो सबसे पहले तो क्या है, जैसे एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, अब उन्होंने बुक भी नहीं पढ़ रखी थी। भाई देखो ऐसा है, आपको कम से कम सेक्शन तो ध्यान में होना। मैंने उनको कहा भाई ये सेक्शन पढ़ लो, अब कहते उस सेक्शन में क्या लिखा। भाई सेक्शन तो आपको खुद ही पढ़ना है ना, किसी को भी, है कि नहीं। तो क्या है कि बुक तो जरूर होनी चाहिए आपके पास, वो भी लेटेस्ट बुक होनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने के बाद में ये सब चीजें एड्स है, ये तो एड है बेसिकली, है कि नहीं। अब जैसे हम प्री एडमिशन स्टेज पर चलते हैं, ठीक है। ये प्री एडमिशन एक बार मैं जरा शेयर करता हूं पहले। कुछ इसमें प्री एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, कुछ पोस्ट एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। ये प्री एडमिशन एंटीसीडेंट्स,
मैं शेयर करता हूँ सर। ये पीरियड बेस्ड, ये नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर, है ना? इज इट विजिबल? हाँ जी। हाँ। तो अब आप क्या है, अब इसमें आप पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हो। अपनी फर्म का नाम लिख दो, ऊपर फर्म का नाम आ जाएगा आपकी। अगर आप क्लाइंट को भेजोगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है ना? अब इसमें हमने इंडेक्स क्या बनाया, एप्लीकेशन बाय पर्सनल गारंटर। अब दोनों एप्लीकेशन लग सकती है, 94 में 95 में, तो दोनों का फॉर्मेट सही है। भाई आपका तो, आपने तो दुकान खोल रखी है, आपने एक शोरूम खोल रखा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, ठीक है ना? जैसा ग्राहक आएगा उसको वैसा सामान दोगे, तो दोगे तो तब ना जब आपकी दुकान में सामान होगा, तो है कि नहीं? तो ये सारा शो केस है। अब आपने क्या किया, उसके बाद में इंटरिम मॉनिटोरियम की बात कर रहा, ये एप्लीकेशन लगा दी आपने, ठीक है? ये 94 की एप्लीकेशन लगा दी। फॉर्मेट तो चाहिए ना आपको, ये फॉर्मेट बना दिया सर। ये एप्लीकेशन लगा दी 95 में, ये सब फॉर्मेट यहीं से जनरेटेड है। ये रिपोर्ट बना दी, आरपी भी तो अपनी रिपोर्ट देगा ना 99 में, तो ये रिपोर्ट बना दी इसकी। ये तो एक इनिशियल चीज है, बना दी, है ना? अब इसके बारे में और डिटेल में जाते हैं, रिपोर्ट देखते हैं 99 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उसमें क्या क्या लिखा रहता है, ये इंडेक्स हो गया आपका, आरपी रिपोर्ट्स। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं अभी दिखाता हूँ कि बहुत सारी रिपोर्ट्स। अच्छा, ये तो सीआईआरपी की, चलो सीआईआरपी भी देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। सभी तो कुछ तो करना ही है। इसका पर्पज यही है आज कि भाई क्या क्या आप इससे जनरेट कर सकते हो। अब ये इंडेक्स है कि सीआईआरपी में क्या क्या रिपोर्ट्स बनानी है इसको, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस और प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय द आरपी इन सीआईआरपी प्रोसेस। तो ये सारी सारी रिपोर्ट आपको बनानी है। रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ये सारी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको बनानी है, ठीक है? ये तो आपके पास पहले आप बोलोगे भाई, ये इसको खुद बोलो कि भैया ऐसा है, आप ये बताओ कि आरपी को कौन कौन, सपोज यू आर हैंडलिंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है? तो यू हैव टू गो प्रोसेस वाइज, ताकि वो, भाई अगर आप घर में भी जाते हो तो एक पता चलता है, एक कमरे में कोई चीज ढूंढनी है, उसी कमरे में जाओगे ना आप, तो आप चले, सपोज यू आर हैंडलिंग सीआईआरपी, आप पहले क्लाउड को बोलो कि भाई यू प्लीज फ्रेम एन इंडेक्स ऑन द वेरियस रिपोर्ट्स, है ना, which are to be submitted by an IRP or RP during the CIRP process. Please give me a draft of each of these reports. तो वो क्या करेगा, एक इंडेक्स बना देगा। तो अब आप इंडेक्स को देखो कि इंडेक्स में कोई चीज छूटती है क्या, है ना? अगर वो सिर्फ somebody, if something is left, then you ask them कि भैया ठीक है, मेरे को ये वाली रिपोर्ट्स और दे दो। फर्स्ट यू formulate the index, then you can ask him, now please start drafting each of these reports। तो वो हर एक रिपोर्ट बनाना शुरू कर देगा इस तरह से। अब ये 99 एप्लीकेशन, ये 99 एप्लीकेशन, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर इट विद यू। ये अब 99 की एप्लीकेशन है, ये 99 की एप्लीकेशन इसने बना दी। क्योंकि क्या होगा, दूसरा भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या करेगा, उसके पास कोई होगी भी ना तो उसकी अपनी बनी हुई होगी, वो इतना तो है नहीं कि सारे नाम वाम हटाता रहेगा, वो आपको ऐसे कैसे भेज देगा। लेकिन ये फॉर्मेट्स जो है, ये फॉर्मेट्स जनरल बना रखे हैं इसने कि भैया कैसे कैसे रिपोर्ट इसको बनानी है, एफिडेविट क्या देना है, सब चीजें, कॉरेस्पॉन्डेंस विद फाइनेंशियल क्रेडिटर, है ना? तो अब ये भी क्या है, ये भी हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
डेवलप की, लोगों से बातचीत करके, यार हमारे ये रिपोर्ट भेज दो, ये क्या होगा, इस तरह से। अब क्लाउड तो हमने अब लिया, तो पहले से भी वर्किंग तो कर ही रहे थे ना हम इस पर। तो ये है कि जो भी कॉरेस्पॉन्ड आपने बैंक से कुछ करनी है, डिटेल्स मांगनी है, तो ये सब चीजें ये आप दे दोगे उसको, आपको एक बेसिक ड्राफ्ट मिल जाए, फिर आप कर सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंस विद पर्सनल गारंटर, तो भाई इंफॉर्मेशन आपने माननी है ना। तो ये सारी चीज, ये 99 की एप्लीकेशन से पहले इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं विच यू कैन मेक यूज ऑफ, है ना। तो इनका यूज करके और आप जो है इसको कर सकते हो। हमने तो काफी यूज किया है। अब मैं आपको मालूम है, मैं तो प्रैक्टिस तो करता नहीं, लेकिन ये अपने यार दोस्तों के काम में तो आती है ना चीजें। ये बात है, कोई भी हमसे मांगता है तो पहले तो हम अपना दिमाग लगाते हैं कि भैया क्या होना चाहिए, फिर क्लाउड को भी यूज करते हैं। तो वो चीज, तो आपको कोई भी फॉर्मेट चाहिए, सारे फॉर्मेट्स प्रोसेस वाइज हम लोग बना देंगे 2-4 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, कि देखो जी ये वाला चीज इसके अंदर नहीं है ना, या ये रेगुलेशन नंबर गलत दिया हुआ है, ये वाला ठीक नहीं है, या ये चीज और ऐड करनी है। देखो आपको एक बेसिक चीज मिल जाए, आप उसके अंदर कमी निकाल सकते हो, है कि नहीं, उसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो पर्पस तो वही है, सभी का पर्पस वही है। वी आर ए 600+ ग्रुप, तो अगर हम एक दूसरे की ऐसे हेल्प करना शुरू कर दें तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मेन बात ये है कि नहीं। तो इफ यू हैव एनीथिंग टू से, यू कैन से कि भाई आपको और ऐसे प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज ऑल्सो।